Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In the previous lecture, that is lecture number 5 of Principles of Management, we have discussed about coordination, meaning and its characteristics. Let's have its quick revision. What is coordination? Coordination refers to that process through which harmony is established among different activities of an organization so that organizational objectives can be successfully achieved. It means coordination क्या है? Coordination एक ऐसा process है जिसके द्वारा हम harmony create करते हैं. Harmony means mutual understanding. ठीक है, हारमोनी क्रिएट करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ऐसा क्यों करते हैं? सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी सक्सेसफुली अचीव्ड, ताकि जो भी हमने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो हम सक्सेसफुली क्या कर सकें, अचीव कर सकें. मूविंग अहेड टुवर्ड्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन which we had discussed were: first, coordination integrates group effort. Second, we have discussed coordination ensures unity of action. Third one is it is a continuous process. Next, coordination is an all-pervasive function. Fifth, it is a responsibility of all the managers. And last one is coordination is a deliberate function. For detailed explanation, do watch lecture number 5 of Principles of Management, as I have mentioned its link in the description box below. And today we are going to discuss our next topic, that is management as science, art and profession. In today's lecture we will discuss only two aspects, that is management as science and management as an art. And the third aspect, that is management as a profession, we will discuss it in the upcoming video. Let's start with the today's topic, management as science and management as art. Different management experts have described the nature of management differently in their own time. First comes management as a science. It is important to understand the meaning of science before accepting management as a science. Meaning of science. Science refers to that systematic body of knowledge which is acquired on the basis of observation and experiments, and verification of this knowledge is possible. साइंस क्या है? एक ऐसी सिस्टमेटिक बॉडी है नॉलेज की जो कि हम एक्वायर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स. मीन्स कुछ ऑब्जर्व करके या कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर जब हम कुछ भी नॉलेज को एक्वायर करते हैं और उस नॉलेज की अगर हमारी वेरिफिकेशन पॉसिबल होती है तो दैट विल बी योर साइंस. ठीक है, दोबारा देखते हैं एक बार. साइंस रेफर्स टू दैट सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज एक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, एंड वेरिफिकेशन ऑफ दिस नॉलेज इज पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल, a person completes his study of engineering. During the course of his study, he gets a complete theoretical knowledge of the subject. His acquiring of knowledge in this manner is a science. एग्जाम्पल क्या लिया था कि एक पर्सन है वो कंप्लीट कर रहा है अपनी स्टडी इंजीनियरिंग की, राइट. ड्यूरिंग द कोर्स, अपने कोर्स के दौरान वो जो भी नॉलेज ले रहा है सब्जेक्ट मैटर की, थ्योरेटिकल नॉलेज जो भी वो गेन कर रहा है, दैट विल बी योर साइंस. एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज क्या है उसके लिए? साइंस. ठीक है, कुछ नॉलेज एक्वायर कर रहा है ऑन द बेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स. नाउ साइंस सीम्स टू हैव द फॉलोइंग थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स. First one is systematic body of knowledge. Second, principles based on experimentations. And third one is universal validity. Testing of management as a science. It is important to apply these characteristics of science to management in order to find out whether management is science or not. अगर हमने जो भी फीचर्स पढ़ी है ना साइंस की, कि दैट विल बी अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशंस, यूनिवर्सल वैलिडिटी, हम अब चेक करेंगे कि क्या ये फीचर्स जो हैं वो मैनेजमेंट के पर भी अप्लाई होती हैं.
अगर तो ये सारी साइंस की फीचर्स आपकी मैनेजमेंट में भी अप्लाई होंगी तो हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज अ साइंस, ठीक है। अगर ये फीचर्स हमारी मैनेजमेंट पर अप्लाई नहीं होंगी, फिट नहीं बैठेंगी, देन वी यूज टू कॉल मैनेजमेंट इज नॉट अ साइंस, ठीक है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। It is necessary for science to be a systemized body of knowledge. Management is also a systemized body of knowledge because it has its own theory and principles which are developed by the management experts after years of research. देखो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है साइंस के लिए कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। और मैनेजमेंट भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, वो डेवलप किए गए हैं बाय द एक्सपर्ट, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स। और कैसे किए गए हैं? आफ्टर ईयर्स ऑफ रिसर्च, कुछ कई सालों तक रिसर्च करने के बाद ही वो थ्योरीज या वो प्रिंसिपल्स क्या हुए हैं, डेवलप हुए हैं बाय द मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, ठीक है। दैट्स वाई वी कैन से दैट management is also a systemized body of knowledge. Second feature of science is principles based on experimentation. After applying this characteristic of science to management, we find that development of management took years for the collection of facts, their analysis and experiments. In other words, management came into existence because of the continuous and encouraging labor of the theorists and various people concerned. देखो, जो हम साइंस पढ़ते हैं उसमें जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। और जो हमारी मैनेजमेंट है उसके प्रिंसिपल्स भी बेस्ड होते हैं मैनेजमेंट के एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। बिकॉज क्या कहा जाता है कि जो भी मैनेजमेंट है, ठीक है, ये देखो ना लाइन क्या है, इन अदर वर्ड्स मैनेजमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूअस एंड अनकरेजिंग लेबर ऑफ द थ्योरिस्ट्स एंड वेरियस पीपल कंसर्न। बहुत सारी रिसर्च की जाती है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, डेटा कलेक्ट किया जाता है, मतलब बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं तभी कोई चीज़ हम क्या करते हैं, अप्लाई कर पाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स बेस्ड होते हैं एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर, सिमिलरली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ऑल्सो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशंस। थर्ड feature is universal validity. Scientific principles are based on truth and they can be applied at every time and in every situation. देखो, जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं, हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? ट्रूथ के ऊपर, ठीक है। और वो सेम प्रिंसिपल आप कभी भी किसी भी टाइम पर और किसी भी सिचुएशन पर लगाओगे, अप्लाई करोगे तो आपको सेम रिजल्ट ही देने वाले हैं, ठीक है। Thus, its universal application is possible, right? In the field of management too, managerial knowledge and principles of management are considered to be based on truth and they too can be applied anywhere and in every situation. But the principles of management are not as exact as the principles of science, as their application may not yield the desired results always. देखो क्या बोला गया है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला कि साइंटिफिक प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं ट्रुथ के ऊपर और वो अप्लाई किए जा सकते हैं किसी भी टाइम पे और किसी भी सिचुएशन पे, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है ना, उनका यूनिवर्सल एप्लीकेशन क्या है, पॉसिबल है। अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, ठीक है, तो जो मैनेजरियल नॉलेज है या जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, उनको भी कंसीडर किया गया कि वो भी बेस्ड होते हैं ट्रुथ के ऊपर और वो भी अप्लाई किए जाते हैं कहीं पर भी, कैसी भी सिचुएशन हो, हर सिचुएशन में, हर जगह पर, ठीक है। लेकिन बट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट as exact as the principles of science, as their application may not yield the desired results always. लेकिन हम ये कहते हैं कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ना, वो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस की तरह एग्जैक्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो इनका एप्लीकेशन है ना, ठीक है, जो हमने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को अगर हम अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली, तो वो आपको डिजायर्ड रिजल्ट हमेशा सेम दे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। Moving towards the conclusion,
The management cannot be treated as a perfect science, but as its principles are subject to change with time, situations, and human nature, it is better to call it applied science or inexact science. देखो क्या बोला गया है, हमने क्या कहा, मैनेजमेंट को हम साइंस तो मानते हैं बट परफेक्ट साइंस नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि जिसके प्रिंसिपल्स होते हैं ना वो चेंज होते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, सिचुएशन, ह्यूमन नेचर. तो बेटर होगा कि हम मैनेजमेंट को परफेक्ट साइंस ना बोल के क्या बोल सकते हैं, अप्लाइड साइंस और इनएग्जैक्ट साइंस. अर्नेस्ट डेल हैड कॉल्ड मैनेजमेंट अ सॉफ्ट साइंस बिकॉज इट्स प्रिंसिपल्स आर नॉट वेरी रिजिड. तो एक हमारे ऑथर थे, ठीक है, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने क्या बोला है कि मैनेजमेंट क्या है, एक सॉफ्ट साइंस है. अब सॉफ्ट साइंस क्यों बोला गया है? क्योंकि इसके जो भी प्रिंसिपल्स हैं ना वो इतने रिजिड नहीं होते. मीन्स आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं नेचर में. आप उसे अपनी टाइम के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस लेके आ सकते हैं. ठीक है, तो कंक्लूजन मेन क्या निकला, क्रक्स क्या है, मैनेजमेंट इज नॉट ट्रीटेड एज अ परफेक्ट साइंस बट इट इज बेटर टू कॉल इट अप्लाइड साइंस और इनएग्जैक्ट साइंस. नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट. व्हाट इज एन आर्ट? हम सबको पता, हम आर्ट को बोलते हैं नॉर्मली कला. ठीक है, कोई भी काम को करने की कला. लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या होता है आर्ट का? आर्ट रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किलफुली. देखो, थ्योरेटिकल नॉलेज हर किसी के पास होती है, लेकिन उस थ्योरेटिकल नॉलेज का स्किलफुली एप्लीकेशन करना, प्रैक्टिकली अप्लाई करना उस एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज को, दैट विल बी योर आर्ट. ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं. सपोज 2 टीचर्स हैं. ठीक है, अब दोनों टीचर्स के पास अपने अपनी क्वालिफिकेशंस हैं, डिग्रीज हैं उनके पास रेलेवेंट. ठीक है, मीन्स दोनों के पास एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज तो है, बट क्या दोनों टीचर्स के टीच करने का मेथड सेम होगा? क्या उनके टीच करने का वे सेम होगा? नो, क्योंकि हर पर्सन की स्किल अपने वे से होगी. सबकी स्किल सेम लेवल पे हो, ठीक है, ऐसा कंपलसरी तो नहीं है ना. तो हर पर्सन की अपनी अपनी आर्ट है कि वो अपने वर्क को कैसे प्रेजेंट कर सकता है स्किलफुली ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज. ठीक है, आर्ट रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज skillfully. For example, when a person after completing the course of engineering starts working as an engineer in a company, his work is known as an art. देखो, अगर एक पर्सन अपनी इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट करने के बाद वर्क कर देता है स्टार्ट एज एन इंजीनियर किसी कंपनी में, तो उसका जो ये काम है एज एन इंजीनियर, वो क्या होगा, उसकी एक आर्ट है कि उसने जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज गेन की थी, अब उसे वो क्या करेगा, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेगा स्किलफुली. प्रैक्टिकली अप्लाई तो देखो हर कोई करता है, बट अगर आप उसे स्किलफुली अप्लाई करते हैं, दैट विल बी योर आर्ट. ठीक है, आपका अपना वे बन जाता है कि आप उस अपनी थ्योरेटिकल एग्जिस्टिंग नॉलेज को कैसे प्रेजेंट करते हो वर्क फील्ड में, जब आप प्रैक्टिकली आते हो फील्ड के अंदर. फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट. फर्स्ट वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर आर्ट हो, कला हो किसी का काम करने की, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दैट यू मस्ट हैव एन एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. आपके अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए. पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ कि हर पर्सन के पास सेम थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, बट उसको अप्लाई करने का सबका वे अपना अपना होता है. ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. जितनी आप किसी चीज को, किसी भी काम को करने की प्रैक्टिस करेंगे, क्रिएट करेंगे, क्रिएटिविटी होगी, उतनी ही आपकी आर्ट क्या होती है, इम्प्रूव होती है. ठीक है, सभी स्किलफुली, देखो स्टार्टिंग से बाय बर्थ कोई नहीं होता कि स्किलफुली प्रेजेंट कर सके अपनी नॉलेज को, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस के थ्रू उसे इम्प्रूव कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट. वेदर मैनेजमेंट इज एन आर्ट और नॉट will be known by the application of the characteristics of art in management, description of which is as under. देखो,
जो हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं अभी आर्ट की, 3 करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है ना हमने. फर्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. सेकंड, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. थर्ड, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. अब हम इनको क्या करेंगे, मैनेजमेंट के अंदर इनको अप्लाई करके देखेंगे कि क्या हमारी मैनेजमेंट एक आर्ट है या फिर नहीं. फर्स्ट वन इज existing of theoretical knowledge. Art is always based on certain theoretical knowledge. Obviously आर्ट का मतलब क्या है कि प्रैक्टिकल अप्लाई करना किसी चीज़ को स्किलफुली. अब किसी चीज़ को क्या मतलब है कि जो भी आपने थ्योरेटिकल नॉलेज गेन की थी ड्यूरिंग योर कोर्स, ठीक है, अब उसे आप अपने वर्क प्लेस पर उसे अप्लाई कर रहे हो. अब अप्लाई तो आप तभी करोगे ना जब आपने बेस लिया होगा, मीन्स आपने एग्जिस्टिंग नॉलेज आपके अंदर होगी, थ्योरेटिकल नॉलेज मतलब, ठीक है. अगर आपने बुक्स में से कुछ रीड ही नहीं किया हुआ तो आप उसे अप्लाई कैसे करेंगे. On the basis of this knowledge, one can understand how a particular work can be accomplished. In this context, management is an art as a lot of literature is available in various areas of management. इसीलिए बोला गया है कि हमारी जो मैनेजमेंट है ना वो भी एक आर्ट है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे लिटरेचर अवेलेबल है वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि बहुत सारी थ्योरेटिकल पोर्शन अवेलेबल है हमारी मैनेजमेंट के पास. Second one is personalized application. The use of available theoretical knowledge is found in varying degree among different persons. For example, 2 players or 2 goldsmiths will always differ in performing their jobs. देखो, अब हर किसी के पास theoretical knowledge है, ठीक है, लेकिन उसका यूज़ कैसे करना है वो हर पर्सन में अलग अलग वे में वो करेगा. देखो, हमने जैसे एग्जांपल लिया था ना, 2 टीचर्स हैं, सेम क्वालिफिकेशन है उनकी, ठीक है, सेम डिग्रीज हैं उनके पास, सेम थ्योरेटिकल नॉलेज है, बट किसी एक टीचर का स्टूडेंट को जल्दी से समझ आ रहा है मीनिंग और किसी दूसरे टीचर का सपोज नहीं आ रहा, तो वो एक डिफरेंस क्या होगा, देयर आर्ट ऑफ टीचिंग. ठीक है, सपोज एक टीचर है जिसका समझ आ रहा है स्टूडेंट्स को, मे बी वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके समझा रहे हो, ठीक है, और सपोज जिनका ईजिली समझ नहीं आ पा रहा है स्टूडेंट्स को, मे बी वो बुकिश लैंग्वेज को जस्ट रीड करते हो, तो वो कुछ भी डिपेंड कर सकता है. तो मीन्स कि उनकी आर्ट कैसी है, कोई भी काम करने की जो आर्ट है वो हर पर्सन में डिफरेंट होती है. ठीक है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है, पर्सनली कैसे अप्लाई करना है ये हर पर्सन की अलग अलग डिफरेंट पर्सन्स में डिफरेंट डिग्रीज होती हैं. मैनेजमेंट पोजेसेस दिस फीचर ऑफ आर्ट टू. देयर आर वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एज डेवलप्ड बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के पास बहुत सारे क्या हैं, मीन्स मैनेजमेंट के पास बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो कि अलग अलग प्रोफाउंडेड किए गए हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा. ठीक है, डेवलप किए गए हैं बाय द मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स. मैनेजर्स अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन देयर लेवल ऑफ नॉलेज. देखो, प्रिंसिपल सेम है, लेकिन अब मैनेजर की ये आर्ट है कि उसे कैसे अप्लाई करेगा डिपेंडिंग ऑन देयर लेवल ऑफ नॉलेज. हर मैनेजर डिफरेंटली उसे अप्लाई करता है, किस बेसिस पे कि उनकी लेवल ऑफ नॉलेज कैसा है. ठीक है, समटाइम्स दे मे गेट एग्जैक्टली ऑपोजिट रिजल्ट्स व्हाइल अप्लाइंग द सेम प्रिंसिपल्स. कई बार क्या होता है, 2 मैनेजर्स हैं, ठीक है, सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहे हैं, बट स्टिल उनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, टोटली ऑपोजिट्स हैं. क्यों? क्योंकि जो उन्होंने अप्लाई किया था वो डिफरेंट वे में किया हुआ है. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. Just as art can embellished with the help of practice, in the same way managerial skills also improves with practice. जिस तरह हम अपनी आर्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं प्रैक्टिस की हेल्प से, इन द सेम मैनर उसी तरह आप अपने मैनेजरियल स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस. एवरी मैनेजर हैज़ अ डिज़ायर टू बिकम अ कंप्लीट एक्सपर्ट इन हिज फील्ड. हर मैनेजर की एक इच्छा होती है कि वो अपनी फील्ड में कंप्लीटली एक्सपर्ट बन सके. ठीक है, दे कैन फुलफिल देयर डिज़ायर बाय अ कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस. और वो ऐसा फुलफिल भी कर सकते हैं अपने डिज़ायर को, कैसे, बाय कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस. प्रैक्टिस करते जाए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपनी फील्ड में ही एक्सपर्ट बन जाते हैं. ठीक है,
A fully developed manager not only molds the organization according to the changing circumstances but also has the capacity to change the outward circumstances according to his will. देखो, जो फुली डेवलप्ड मैनेजर्स होते हैं ना, वो ना सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को मोल्ड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, लेकिन वो अपनी कैपेसिटी बट ऑल्सो हैज़ द कैपेसिटी टू चेंज द आउटवर्ड, लेकिन उनके पास एक ये भी कैपेसिटी होती है कि वो बाहर के एनवायरनमेंट को भी चेंज कर सकें, आउटवर्ड सर्कमस्टांसेस को भी अपने विल के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. समझ रहे हो ना कि इतने कैपेबल हैं एक फुली डेवलप्ड मैनेजर कि वो सिर्फ और सिर्फ मोल्ड नहीं कर सकते ऑर्गेनाइजेशन को, वो क्या और भी उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो आउटवर्ड एनवायरनमेंट को, आउटवर्ड सर्कमस्टांसेस को भी चेंज कर सकते हैं एज पर देयर ऑन विल. Thus, management possesses this feature of art too. The above analysis clearly establishes that management possesses all the characteristics of an art and on the basis of it has been accepted as an art. अब बोला गया है कि कंक्लूजन क्या निकाला हुआ है कि मैनेजमेंट सारी जो करेक्टरिस्टिक्स है ना आर्ट की, उनको अप्लाई कर पा रहा है, ठीक है, और पोजेस कर रहा है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज एन आर्ट. मैनेजमेंट को हम आर्ट की तौर पे भी एक्सेप्ट कर सकते हैं. कंक्लूजन. Therefore, we can say that management is both a science as well as an art. As a science, management with the help of its principles provides the necessary guidance to the managers to achieve practical efficiency. इसीलिए हम बोल सकते हैं ये सारी फीचर्स जो साइंस की फीचर्स और जो आर्ट की फीचर्स थी, ये मैनेजमेंट के ऊपर अप्लाई करने के बाद हम एक कंक्लूजन पर पहुंचे हैं क्या, कि मैनेजमेंट को आप साइंस भी बोल सकते हो एंड आर्ट भी बोल सकते हो. एज अ साइंस, मैनेजमेंट अपने प्रिंसिपल्स की हेल्प के थ्रू मतलब क्या प्रोवाइड कर रहा है, नेसेसरी गाइडेंस प्रोवाइड करता है मैनेजर्स को, ताकि वो प्रैक्टिकल एफिशिएंसी को क्या कर सके, अचीव कर सके. विथ रेफरेंस टू आर्ट, मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ बेस्ट वर्क टेक्निक हेल्प्स द मैनेजर्स टू फेस एवरी टाइप ऑफ सिचुएशन सक्सेसफुली. और अगर हम बात करें आर्ट के रेफरेंस में, तो मैनेजमेंट एक बेस्ट टेक्निक की फॉर्म में हेल्प करता है मैनेजर्स को कि वो फेस कर सके हर टाइप की सिचुएशन को सक्सेसफुली. देयरफॉर it is reasonable to treat management both as a science and an art. I hope this topic is clear to all of you, but still if there is any query or any doubt, do let me know in the comment section. Thanks and have a wonderful day.